Hello guys, so this is the time when many aspirants are starting for the GATE 2024 preparation and me, Ashu sir, we keep receiving lot of queries कि sir start कैसे करें, right? Of course we keep bringing you strategy sessions, but ये एक different strategy है because it is also important to realize कि किस subject से starting कर रहे हो because if your starting is good and if you keep the momentum then your preparation will be all happy. गलत सब्जेक्ट से पिकअप करोगे जिसके प्री-रिक्विजिट सब्जेक्ट्स आपने नहीं पढ़े होंगे तो you might be ending in a frustration level. So me and Ashu sir are going to tell you what is the sequence of subjects for EC and EE और मेरे ख्याल से सर कॉमन ही होते हैं ऑलमोस्ट कॉमन. तो आशु सर सर मैं बताऊं कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स उठा लेते हैं, पावर सिस्टम उठा लेते हैं, मशीन उठा लेते हैं, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स उठा लेते हैं, जबकि उनका बेसिक वाला पार्ट जो होता है वो नहीं पूरा होता है, तो वहां पे जाके वो स्टक कर जाते हैं. तो इसलिए हम आज का जो सेशन हम ले रहे हैं वो इसी पे है कि कैसे आपको सीक्वेंस स्टार्ट करनी, कौन सा सब्जेक्ट पहले करें और वो सब्जेक्ट कौन से आगे आने वाले सब्जेक्ट्स में यूज होने वाला है. राइट, तो उसको लेके आज हम डिस्कस करेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट. विल जस्ट नॉट टेल यू कि दीज आर द 4-5 सब्जेक्ट्स टू स्टार्ट, व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट एंड दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज लिंक्ड विद व्हाट नेक्स्ट सब्जेक्ट, वो भी हम पूरा क्लैरिटी देंगे. सो लेट अस गेट स्टार्टेड एंड फर्स्ट स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट सब्जेक्ट दैट यू कैन डेफिनेटली पिक अप इज द इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स. नंबर 1 रीजन इज 13 मार्क्स. नंबर 2 रीजन इज इजी टू ग्रैब 13 मार्क्स, मतलब उतना एफर्ट नहीं लगेगा जितना टेक्निकल में लगता है. सो दीज आर द 2 बिग रीजंस यू स्टार्ट ऑफ विद. नंबर 3, इफ यू आर अ गुड मैथमेटिशियन यू आर अ गुड इंजीनियर. इतना तो मान लो मैथमेटिक्स अच्छी है ना तो इंजीनियरिंग समझने में डिफिकल्टी नहीं होगी. 3 बिग रीजंस. ओके, नाउ लेट अस कम टू द एक्चुअल रीजंस कि व्हाई मैथमेटिक्स कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग सब्जेक्ट्स. सो हियर आई हैव द डिस्ट्रीब्यूशन. नंबर 1, इट इज वेरी यूजफुल फॉर कंट्रोल सिस्टम. कंट्रोल सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर दीज डेज इज द स्टेट स्पेस एनालिसिस, जो कि टोटली डिपेंड करता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर. बिकॉज व्हेन वी गो टू द कंट्रोलेबिलिटी ऑब्जर्वेबिलिटी टेस्ट देयर वी नीड टू अंडरस्टैंड रैंक, डिटरमिनेंट कैलकुलेशन एंड रेस्ट all all the forms of state space model you make, okay, need the eigen value characteristic equation analysis. तो control system state space is absolutely dependent on linear algebra. तो वो हो जाएगा तो बहुत आपको हेल्प मिलेगा. Otherwise, guys, when we are also teaching na, and if you are blank with maths, we have to tell you some basics of algebra, right? Now next is signal and system. Especially signal system itself is a complete mathematical subject. It is good to have strong mathematics. Some parts of calculus are also slightly useful here, but the most important thing that is used from mathematics in signal and system is the complex function analysis, right? Lots of complex calculations keep coming here. Also if you say the calculations like inverse Fourier or inverse Laplace transform calculation, वो signal and system में use होती है mathematics में से. So complex function residue concept comes and used here. Okay, so there are lots of things of mathematics that is used in the signal and system. आप linear algebra से भी relate करते हैं because signal and system when you are going to start the transform theory, whether it is continuous time, discrete time, you talk about the concept of eigen signals. ठीक है, अगर आप depth में पढ़ रहे हो, right? The eigen signal that you study here is pretty much related in concept to the eigen value that we study in mathematics, eigen vectors actually that we study in mathematics. So mathematics is again a very important subject to go before signal and system. EMFT पे आ जाए तो बहुत सारे बच्चे डरते हैं EMFT से और उसका सिर्फ एक रीजन होता है, दैट इज दे आर पुअर एट वेक्टर कैलकुलस. गाइस 100 times I've told you, if you are good at vector calculus, you will be good at EMFT because you are able to understand what vectors are. Okay, only thing is EMFT के लिए vector में आपको थोड़ा cylindrical और spherical coordinate भी पढ़ना होता है, but at least from the mathematics, engineering mathematics part, you should be very thorough with the Cartesian coordinate system और थोड़ा बहुत तो polar coordinates आप यहाँ पे भी study करते ही हो. Guys, all Gauss divergence theorem, Stokes theorem, line integral, surface integral, volume integral that you study in vector calculus and maths, everything being used here in the EMFT, right? Electric field, negative of the gradient of E. So you know how to calculate the gradient. You should know what is the meaning of gradient. Ampere's law पे चले जाएंगे, that is related to the curl of the function. Everything vector calculus पूरा यहाँ पे used है, right? Communication system, especially let us talk about the digital communication area. It is the first chapter in digital communication mostly is the probability and random variable, right? ठीक है, यहां पे थोड़ा और डेप्थ में चले जाते हो, बट द सेम प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम वेरिएबल, ऑल डिस्ट्रीब्यूशंस, बी इट गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, टोटली रिलेटेड विद द कांसेप्ट ऑफ नॉइज. ठीक है, भले आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर ले, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर ले, ऑल डिस्ट्रीब्यूशंस यू कम एंड अप्लाई हियर, राइट? तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी स्ट्रांग होना प्लस द डिस्ट्रीब्यूशन एरिया स्ट्रांग होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर डिजिटल कम्युनिकेशन, राइट? आशु सर पावर सिस्टम्स के बारे में बताएंगे कि हाउ मैथ्स इज यूजफुल फॉर पावर सिस्टम.
पावर सिस्टम में लोड फ्लो स्टडीज होता है। लोड फ्लो स्टडीज में हम न्यूटन रेप्सन मेथड पढ़ते हैं एंड गॉस सीडल मेथड पढ़ते हैं, तो वहां पे पावर सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैथ्स का पार्ट। दूसरा, मैथ्स का जो कैलकुलस वाला पार्ट है वो पावर सिस्टम में ऑलमोस्ट हर जगह पे इस्तेमाल होता है, खासकर जब आप स्टेबिलिटी पढ़ते हो, पावर सिस्टम स्टेबिलिटी, वहां पे इंटीग्रेशन, मैक्सिमा, मिनिमा, ये सब कंसेप्ट जो है वो आपके यूज होते हैं। तो मैथ्स ओवरऑल एक काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जो कैलकुलस वाला पॉइंट आपने बोला ना, तो जैसे मैंने कंट्रोल सिस्टम में स्पेसिफाई किया लीनियर अलजेब्रा, बट गाइस कैलकुलस, स्पेशली द कांसेप्ट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, इज अ एरिया वेयर एवरी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट नीड्स इट। पीक ओवरशूट निकालते हैं, कैसे डिराइव करोगे? ठीक है, कहीं पे भी मैक्सिमा पीक कुछ निकालना है तो वी नीड कैलकुलस, वी नीड द फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सो मैथमेटिक्स तो कर लो, कैलकुलस इज गोइंग टू बी यूज्ड एवरीवेयर। सो आशुष सर, आई वुड लाइक टू कंटिन्यू एंड टॉक अबाउट नेटवर्क थ्योरी एज वेल। नेटवर्क थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं तो इलेक्ट्रिकल में तो ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट इज रिलेटेड विद नेटवर्क थ्योरी। बिकॉज अगर आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से पूछेंगे कि गेट का एग्जाम कैसा रहा या ईएससी का एग्जाम कैसा रहा, सो एक होलिस्टिक अप्रोच जो रहेगी वो नेटवर्क थ्योरी की रहेगी। वो स्टूडेंट भी आपको यही बोलेगा कि एवरीवेयर मैंने नेटवर्क को ही देखा है। सो नेटवर्क थ्योरी इज इंपॉर्टेंट। कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो नेटवर्क थ्योरी से रिलेटेड हैं। सबसे पहले एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। एनालॉग तो ईसी के लिए भी आपका कॉमन है, इलेक्ट्रिकल के लिए भी कॉमन है। तो एनालॉग सर्किट्स में नेटवर्क थ्योरी के बिना आप इसमें प्रोसीड ही नहीं कर सकते हो। खासकर जो डीसी सर्किट्स हमारे जो नेटवर्क थ्योरी में हम पढ़ते हैं, थ्योरम्स पढ़ते हैं, नेटवर्क थ्योरम्स, तो उनका इस्तेमाल काफी ज्यादा होता है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में। नेक्स्ट हम बात करते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में खासकर जो ट्रांजिएंट वाला पार्ट रहता है नेटवर्क थ्योरी का, कैपेसिटर एंड इंडक्टर की जो अंडरस्टैंडिंग है, उसके बिना पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आप इतना बेहतर नहीं कर पाओगे। तो आपको नेटवर्क समझना पड़ेगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को कवर करने के लिए। नेक्स्ट आता है पावर सिस्टम। पावर सिस्टम अगेन एवरीवेयर, एसी सर्किट जो है, पावर फैक्टर के बारे में, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, कपल्ड सर्किट, तो सारी चीजें जो है पावर सिस्टम में इस्तेमाल होती है। इवन टू पोर्ट नेटवर्क भी कई जगह पे इस्तेमाल होता है। तो पावर सिस्टम में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है आपके नेटवर्क थ्योरी का। दूसरी बात करते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन्स की। मशीन्स में भी जो आप थ्योरी पढ़ते हो मशीन्स की, आप कहीं ना कहीं उस थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को या न्यूमेरिकल क्वेश्चन को नेटवर्क थ्योरी का क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकते हो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है इलेक्ट्रिकल मशीन की। तो नेटवर्क थ्योरी अगेन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप ये मत समझिए कि केवल 10 से 12 नंबर का ही आपसे पूछा जाएगा, ये बाकी सब्जेक्ट्स के साथ भी काफी रिलेटेड है। तो नेटवर्क थ्योरी को पहले पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आपने इसके खासकर जो बेसिक लॉज वाला चैप्टर है, नोडल वाला जो चैप्टर है जिसमें इक्वेशन हम लोग डायरेक्ट बनाते हैं, उससे वही बस आपका बहुत डायरेक्टली बन जाता है पावर सिस्टम में। तो अब आगे चल के नेटवर्क थ्योरम्स वाला जो चैप्टर है, एसी एनालिसिस वाला जो चैप्टर है, मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट, टू पोर्ट, ट्रांजिएंट, एवरीथिंग, तो इसके सारे चैप्टर जो है वो हमारे आगे सब्जेक्ट्स में इस्तेमाल होंगे। इसलिए पहले इस सब्जेक्ट को जरूर स्ट्रॉन्ग कर लें। तो सर नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ मूव करते हैं। Yes. सिग्नल एंड सिस्टम। तो गाइस अभी हमने बोला था कि मैथ्स इज रिक्वायर्ड फॉर सिग्नल्स। नाउ सिग्नल्स हाउ इट इज इंपॉर्टेंट, और लेट मी आल्सो ब्रीफ यू वन थिंग। जैसे सर ने बोला कि टेक्निकल में नेटवर्क इज द फर्स्ट सब्जेक्ट टू गुड गो, देन यू कैन गो फॉर सिग्नल्स। देयर इज वन मोर रीजन, दे आर लिंक्ड, बट देयर इज वन मोर रीजन व्हाई वी हैव केप्ट इट, बिकॉज़ ये सब्जेक्ट्स ना दे आर मोर कंफर्टेबल फॉर स्टूडेंट्स एज कंपेयर टू एनालॉग, मशीन्स, ईडीसी। तो इसलिए भी रख रहे हैं। मैंने बोला ना गेटिंग द मोमेंटम इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन। अब सिग्नल्स को देखो, ओके, सिग्नल्स यू स्टडी द लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ओके, एंड कंट्रोल सिस्टम एवरीवेयर लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इनिशियल वैल्यू थ्योरम, फाइनल वैल्यू थ्योरम, स्टडी स्टेट एरर क्या है, पूरा फाइनल वैल्यू थ्योरम पे बेस्ड है। यू शुड नो द कंडीशन, बिकॉज स्टडी स्टेट एरर इज आल्सो फेल्ड एट सम प्लेसेस। हर बार वो स्टडी स्टेट एरर का फॉर्मूला लगा के नहीं कर सकते। व्हाई इट फेल्स? बिकॉज देयर इज लिमिटेशंस ऑफ फाइनल वैल्यू थ्योरम। तो इफ यू नो दोस लिमिटेशंस ऑफ फाइनल वैल्यू थ्योरम, यू आर एबल टू रिलेट स्टडी स्टेट एरर थ्योरी, एंड देन लाप्लास कैलकुलेशन इज यूज्ड एवरीवेयर इन कंट्रोल सिस्टम। तो लाप्लास you study in full depth in the signal and system actually, right? And also guys, signal and system, if you study, तो you know what because control system what you study is the linear control system. signal system पढ़ा तो you know what is linear system, you know what is time invariant system, वो आपको समझने में आसान होगा। also what is the concept of convolution, transfer function समझना आसान हो जाएगा। तो in and all signals strong है तो you are good to go with control system. then analog electronics, right? ऑसिलेटर की बात करें, वेरी यूज पॉजिटिव फीडबैक। देन एनालॉग में फिल्टर डिजाइन की बात कर ले, और स्पेशली द स्टेबिलिटी एरिया, मतलब इवन द बोडे प्लॉट्स इज प्रीटी मच रिक्वायर्ड इन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। हाउ टू टेस्ट द स्टेबिलिटी, वी यूज द कॉन्सेप्ट फ्रॉम द सिग्नल एंड सिस्टम ऑल्सो। यू शुड नो व्हाट इज BIBO स्टेबल। ठीक है, ये देखो जो मैंने आपको बोडे प्लॉट का पार्ट बोला वो तो सॉरी कंट्रोल का पार्ट है, बट कंट्रोल भी एनालॉग से लिंक्ड है, उसमें हम आ जाएंगे। बट स्पेशली सिग्नल एंड सिस्टम से आपका जो BIBO स्टेबिलिटी वाला पार्ट है, यू शुड बी अवेयर कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में एटलीस्ट यू शुड हैव द बेसिक फाउंडेशन कि यू नो व्हाट एग्जैक्टली BIBO स्टेबिलिटी इज एक्चुअली मीनिंग हियर। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पे आशु सर बात करेंगे, बट कम्युनिकेशन को मैं ब्रीफ कर दूं। डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए मैंने बोला प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट, रैंडम वेरिएबल, बट इफ यू गो टू एनालॉग कम्युनिकेशन,
Okay, it is zero without Fourier transform. And at the same time, if you are good with Fourier transform, you are 100% good at analog. मतलब एक फॉर्मेलिटी के लिए आपको थोड़ा पढ़ना है, बट इतना बता दूं, if you have good understanding of Fourier transform, you have real good understanding of analog communication part, at least कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकता, राइट? सर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को भी ऐड कर लेते हैं। सर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में सिग्नल काफी रोल प्ले करता है, खासकर जब हार्मोनिक्स की बात आ जाती है, क्योंकि फोरियर सीरीज का जो चैप्टर है वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ आता है। मतलब अगर आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है फोरियर सीरीज पे, तो आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को इजीली समझ सकते हो। टोटल हार्मोनिक डिस्टोर्शन, कैसे हार्मोनिक को एलिमिनेट करें, इन्वर्टर का जो चैप्टर होता है हमारा, उसमें हम हार्मोनिक एलिमिनेट करते हैं, तो वेव शेप जो डिफरेंट टाइप की स्क्वायर वेव बनती है, तो उन वेव शेप्स का हार्मोनिक एनालिसिस करना होता है। तो एक तरह से सिग्नल एंड सिस्टम जो है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपका फोरियर एनालिसिस, फोरियर सीरीज वाला जो चैप्टर है, अगर वो अच्छा नहीं है सिग्नल सिस्टम का, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आपको परेशान कर देगा। तो इसलिए जरूरी है कि सिग्नल को पहले कंप्लीट करें। तो सर नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ मूव करते हैं, कंट्रोल सिस्टम। सो कंट्रोल सिस्टम में सबसे पहले हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में कंट्रोल सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, स्पेशली जब आप फिल्टर पढ़ते हो। फिल्टर में अगर आपको देखना है लो पास फिल्टर है, हाई पास फिल्टर है, तो बोडे प्लॉट का बड़ा ज्यादा इस्तेमाल होगा वहां पे, क्योंकि बोडे प्लॉट से डायरेक्टली आप चेक कर सकते हो। सिमिलरली आपका निक्विस्ट का भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। दूसरी बात, अगर आप ऑसिलेटर पढ़ रहे हो, तो ऑसिलेटर में जो बाखुसेन क्राइटेरिया होता है वो आपका फीडबैक से निकल के आता है। एग्जैक्टली, हालांकि एमटीए चला गया, but that question was a combination of analog and control concepts. GATE 23 का क्वेश्चन है। और अभी आप रिसेंटली भी देखेंगे सर, काफी क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं जो सब्जेक्ट को मिक्स कर रहे हैं। करेक्ट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिल्टर वाला पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ दैट इज कंप्लीटली लिंक्ड विद कंट्रोल। सो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर आप बात करेंगे, तो कंट्रोल के बिना एनालॉग को पूरी तरह से समझना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि आप कंट्रोल को अच्छा करें। दूसरी बात, नेटवर्क थ्योरी। अब आप बोलेंगे सर नेटवर्क थ्योरी में कैसे हम कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल सिस्टम का एक चैप्टर है स्टेट स्पेस। अब स्टेट स्पेस की हेल्प से भी आप ट्रांजिएंट को समझ सकते हो। ट्रांजिएंट में जो कैपेसिटर इंडक्टर होते हैं, उनमें जो हम स्टेट वेरिएबल हम लेके चलते हैं, तो स्टेट वेरिएबल का, जैसे कैपेसिटर की वोल्टेज को हम स्टेट वेरिएबल ले लेते हैं, इंडक्टर के करंट को हम एक स्टेट वेरिएबल लेते हैं, तो वहां से स्टेट इक्वेशन बन जाती है। और उस तरह से भी आप जो है सोल्व कर सकते हो नेटवर्क थ्योरी के प्रॉब्लम्स को। कई बार नेटवर्क थ्योरी आपने देखा होगा कि नेटवर्क थ्योरी में भी कई बार सर सर्किट अनस्टेबल आ जाते हैं, तो आपको कैसे पता चले कि सर्किट अनस्टेबल है? तो उसके लिए आपको टाउ निकालना पड़ता है, टाइम कांस्टेंट निकालना पड़ता है, और टाइम कांस्टेंट बेसिकली पोल से रिलेट करता है सिस्टम के। तो इसलिए कंट्रोल सिस्टम जो है वो वहां पे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये पढ़ना बहुत जरूरी है सर पहले। सर गेट, आपने जो स्टेट स्पेस वाला पार्ट बोला, आई एम एबल टू रिकॉल गेट 2021 में एक क्वेश्चन आया था इलेक्ट्रॉनिक्स को 2 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन वाज एक्चुअली ऑन कंट्रोलेबिलिटी, बट नेटवर्क था, तो वहां पे स्टेट वेरिएबल कौन सा डिफाइन करना है, फिर अल्टीमेटली वी हैव टू अप्लाई कंट्रोलेबिलिटी ऑब्जर्वेबिलिटी, बट दैट वाज अ मिक्सचर ऑफ नेटवर्क एंड कंट्रोल क्वेश्चन। रिसेंटली मिक्स हो के आ रहे हैं सर क्वेश्चंस, तो काफी जरूरी हो जाता है कंट्रोल सिस्टम को पहले रेडी करना, तैयार करना। जी सर। इसके साथ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स गाइस, सी ऑनेस्टली इट इज नॉट प्रीटी मच लिंक्ड विद अदर सब्जेक्ट्स, एक इंडिपेंडेंट ले सकते हो, बट व्हाई वी पुट इट इन द लिस्ट ऑफ बिगिनिंग सब्जेक्ट्स इज इट इज अ इजी एंड लाइट गोइंग सब्जेक्ट, बट एट द सेम टाइम इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ वेटेज। इलेक्ट्रिकल में इसका वेटेज थोड़ा सा लेस है, मे बी 3-4 नंबर, ज्यादा से ज्यादा उससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है, बट हाँ that is very easy, although it is 3-4 numbers for electrical, but बहुत easy आता है। Electronics के लिए definitely some good questions are expected from the counter and finite state machine area, but it is an independent subject, you can start, you can feel very comfortable, that is why it is one of the beginning list, especially जो digital का beginning part होता है, let's say number system, boolean algebra, logic, it is very easy, बहुत ही ज्यादा, that is why we also call it as digital logic, एक logical subject हो जाता है। हाँ, real topics, combinational, sequential circuit में जब चले जाओगे, ADC, हाँ, ADC DAC के लिए थोड़ा बहुत ओपैम्प वगैरह का नॉलेज हो तो इट इज बेटर, नेटवर्क एंड ओपैम्प का, बट एटलीस्ट मोस्ट पार्ट ऑफ डिजिटल इजीली कॉन्कर्ड। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अगेन आई रिपीट, इट इज अराउंड 8 to 10 मार्क्स ऑफ बिजनेस, तो उनको फोकस करना ही चाहिए जो चीज इजीली फोकस कर सकते हैं। सो गाइज, These are the first 5 subjects according to us. ठीक है, डेफिनेटली ऐसा नहीं है अब आपने मैथ्स पढ़ लिया तो सर EMT में भी बच्चे जा सकते हैं, ओके, बट यूजुअली दिस इज द प्रेफर्ड चॉइस, बट ऑल्सो यू कैन गो फॉर सब्जेक्ट्स लाइक EMT आल्सो। बट एज पर मी एंड आशु सर हमने काफी डिस्कशन किया और इस वीडियो को बनाया। These are the first 5 प्रेफर्ड सब्जेक्ट, जिसमें से एक रखा है मैथ्स को। आई रिपीट, ओके, जस्ट लेट मी समराइज इन वन लाइन: मैथमेटिक्स, network theory, control system, signal and system, digital electronics, right? So if you like the video, do not forget to subscribe the channel, because more such informative content is going to come on the Byju's Exam Prep YouTube channel, and अच्छा लगा तो like जरूर कर देना वीडियो को। Thank you. Thank you. Stay safe.